Good morning, students. This video is the part 2 of chapter Memories of Childhood. In the chapter Memories of Childhood, we have two stories. The first story is The Cutting of My Long Hair by Zitkla Sar that we have already done in the first video. And now this is the second story in that chapter, and the name of this story is We Too Are Human Beings, and the writer is Bama. As I told you earlier also that the story is based on the casteism and untouchability. The narrator shares his own experience on the issues of untouchabilities. So let's start our first paragraph. When I was studying in the third class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability, but I had already seen, felt, experienced, and been humiliated by what it is. So, in this paragraph, the narrator says that when she was in the third class, she doesn't know about the word untouchability. She doesn't know the exact definition of the word untouchability, but she already seen it, felt it, experienced it, and she had been humiliated also by what it is. The word humiliated means to disrespect someone. So, in the second paragraph, I was walking home from the school one day. Now, this is the introduction part actually, and from the second paragraph, our story begins. So the narrator says that she was walking home from school one day, and her old bag hanging from her shoulder, and it was actually possible to walk the distance in 10 minutes only. It means that the distance from her house to her school is only of 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. So it means that 10 minutes uh, to to cover, she can cover that way in only 10 minutes, but she take 30 minutes to cover it. Okay, so where she spent her time, she explained it further. So let's see. It would take me from half an hour to an hour. So it doesn't mean that she take only 30 minutes. Sometimes she spend whole 60 minutes or whole 1 hour also on the same path. Take me from home an hour to an hour to dawdle along, watching all the fun and games that were going on and all the entertaining novelties and oddities in the streets, the shops, and the bazaar. Now, here she gave the reason that where she was busy. She said that um, she took sometimes she took a complete hour to dawdle along, watching all the fun and the games. Dawdle means walk slowly or to waste time. So, where she spent her time? She spent her time in all the novelties and oddities. Novelties and oddities here means that all the activities which are going on that street where she spent her time. Now, in the next paragraphs, she explain it very clearly that what are the activities going on that street. So, let's see that. So, the different activities that is going on the street are the performing monkey is there, the snake which the snake charmer kept in its box and displayed from time to time, the cyclist who had not got off his bike from 3 days, who kept paddling as hard as he could from break of the day. So she explained some activities here. She said that there is a performing monkey also, then there is a snake charmer also, then cyclist is also there. So she was busy in watching all the activities which are going on the street, and these are the examples of some activities. So cyclists are the persons, maybe you watched in the earlier movies also, that some person take a challenge for cycling, that he had not get off his cycle from 3 days or 1 week, and the people gave him money. So that is all the cyclist about here. The rupee note that were pinned on into his shirt to spur him on the spinning wheels. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साइकिलिस्ट था उसको लोग पैसे देते रहते थे, उसकी शर्ट के ऊपर लगाते रहते थे. To spur him means to encourage him.
और कौन कौन सी चीज़ें सी, द मरियंथा टेम्पल, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुकड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, देन द ड्राइड फिश स्टॉल इज़ देयर बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, द स्वीट स्टॉल इज़ देयर, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स थे वहाँ पे, द स्टॉल्स selling fried snacks and all other shop next to each other, the street light always demonstrating how it could change from blue to violet, the Narikuravam hunter gypsy with his wild lemur in cages selling needles, clay beads and instruments for cleaning out the ears. तो यहाँ पे जो नेटिव्स ने बहुत ही क्लियरली चीज़ें बताई हैं और ख़ुद भी वो बहुत ही क्लियरली इन चीज़ों को देखती थी तभी यहाँ पे बता पाई है that there are many stalls which are selling the fruits, then there are some shops डेमोन्स्ट्रेटिंग डेट हाउ इट कुड चेंज, मतलब लाइट्स लगी होती थी शॉप के ऊपर जो कभी ब्लू और कभी वायलेट में बदलती रहती थी. सो एक और वर्ड है यहाँ पे नरिकुवरम हंटर जिप्सी with his wild lemur in cages. So Narikuram hunter gypsy is a type people of the tribe, and lemur is a type of a monkey, or species of another species of a monkey. They're selling the needles and clay beads and instruments for cleaning out the ears. मतलब different चीज़ें बेचते थे. Okay, I will show you that who are the Narikuram hunter gypsy. Let's see. Mm, yes, these are the tribal people who are the Narikulam hunter gypsy, and these are type of the clay beads that they used to selling them. So let's come back to our. Then we have performing monkeys there, then spinning dried fishes, Narikuram hunter gypsy, and with his wild lemur in cages, selling needles, clay beads and instruments. We have done it. Oh, I could go and go on. So narrator said that I could go on and on means that वो और भी अपनी चीज़ें और explain कर सकती है because उसके पास बहुत activities है जो वो देखती थी. Each thing would pull me to a stand still and not allow me to go any further. तो यहाँ मैंने बताया कि यही सब वो चीज़ें थी जो मुझे वहाँ पे बांध के रखती थी और आगे बढ़ने नहीं देती थी. एट टाइम पीपल फ्रॉम वेरियस, अब वो और कुछ एक्टिविटीज़ बता रही है कि और कौन कौन सी चीज़ें थी वहाँ पे. एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पोलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, पुट अप अ स्टेज एंड हेरिंग अस थ्रू देयर माइक्स. सो वो कहती है कभी कभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आती थी वो स्ट्रेंज सी स्टेज पे जाके. हेरिंग्स का मतलब होता है लेंदी स्पीचेस, और जिससे लोग सुन के बोर हो जाते थे तो वो लेंदी स्पीचेस बोलते थे वहाँ पे माइक्स पे जाके. एंड और क्या क्या होता था, देन देयर माइट अ स्ट्रीट प्ले, कभी कभी स्ट्रीट प्ले भी होता था, पपेट शो होता था जिसमें ना कोई मैजिक था ना कोई मिरेकल था, स्टंट परफॉर्मेंस होती थी विदाउट एनी मैजिक विदाउट एनी मिरेकल. ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसा होता रहता है बट ऑलमोस्ट सर्टनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन. ठीक है, तो नेट कहती है कुछ ना कुछ स्ट्रीट में चलता रहता था जिससे कभी वो 1 आवर में तो कभी हाफ एन आवर में अपने घर में पहुँचती थी. इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स. एक और उसने देखो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि और कौन कौन सी चीज़ें होती थी कि देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार ऑल्सो. द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, लिफ्टिंग अ टम्बलर इज अ ग्लास हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट इनटू अनदर टम्बलर हेल्ड इनटू हिज अदर हैंड. ये एक्चुअली वो फेंटने, जैसे हम कॉफ़ी को फेंटेंगे एक कप से दूसरे कप में डालेंगे, वही बताया है कि उसका जो वो तरीका था वो भी नरेटर को बहुत एंटरटेनिंग लगता था और वो कभी कभी उसमें भी बिजी हो जाती थी. और द वे सम अदर पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स, और वो बता रही है अभी कुछ लोग जो शॉप्स जिनकी होती थी वो अनियन चॉप करते थे. देयर आइज टर्न एल्स वेयर सो डैट दे वुडंट स्मार्ट, तो वो अपनी आंखों को दूसरी साइड कर लेते थे क्योंकि चॉपिंग करते वक्त, ताकि वो जो अनियन है उसका जो उसकी वजह से उनकी आंखों में ना लगे तो वो अपने चेहरे को बदल ले, दूसरी तरफ करके भी अनियन काटते थे, वो भी उसे एंटरटेनिंग लगता था. और द एलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली blown down by the wind, all these sights taken together would teeter my legs and stop me from going home. ठीक है, तो उसने ये सारी एक्टिविटीज़ बताई हैं. कितनी एक्टिविटीज़ हमने देखी यहाँ पे, तो कहती है सारी एक्टिविटीज़ जो थी दे टुगेदर वुड टीदर का मतलब होता है बाइंड कर देना, कि वो जो बांध के रखती थी उस रास्ते पे वो जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पाती. स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम. ठीक है, तो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखी यहाँ पे. यहाँ से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी परफॉर्मिंग मंकी से. देन we have the cyclist here, then different stalls are there, then we have political parties
she explained pretty well, then she explained about the coffee clubs. So in this way she explained many activities. Again she explained different distractions. And then according to the season there would be mango, cucumber, sugar cane, sweet potato, palm shoots, palm syrup and palm fruit, गावाज एंड जैक फ्रूट ऑल्सो. तो ये सीजनल फ्रूट्स वो बता रही है कि इनके अलावा ये फ्रूट्स भी होते थे. एंड आई वुड से पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, पैसम, हलवा, बॉयल्ड टैमरिंड सीड्स एंड आइस लॉलीज. तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पे मिलती थी. ठीक है. तो मैंगो यू नो दैट cucumber you also know, sugar cane, sweet potato. I'll show you palm shoots and palm syrup. Gavas you know, jackfruit. Then swelling and savory fried snacks is our payasam is a traditional dish of Tamil Nadu. Then halwa is there. Boiled tamarind seeds is a इमली को कहते हैं हम tamarind. Ice lollies हो गए आपके वो बर्फ के गोले. ठीक है. So let's see that what are the palm shoots. palm shoot एक palm एक तरह का एक ट्री है, एक प्लांट है जो कि मेनली तमिलनाडु वगैरह में पाया जाता है. तो उसके जो शूट्स पार्ट जो होता है उसके स्टेम्स को कहेंगे. शूट जो पार्ट है वो स्टेम्स को कहेंगे. उसके स्टेम्स का लोग यूज़ करते थे वहाँ पे. ओके. सो गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर. गेजिंग का मतलब होता है देखना, घूरना. वो सारा दिन मैं देखती रहती थी. और एक दिन वैसे एक दिन अभी वो आपको इंसिडेंट बता रही है तो सारी उसने डेली एक्टिविटीज़ बताई है. अब जो स्टोरी है हमारी बेसिकली वो यहाँ से स्टार्ट होती है. कह रही वो एक दिन जा रही थी. आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर. एट द ऑपोजिट कॉर्नर दो threshing floor had been set up and the landlord watched the proceedings. Sealed on a piece of sacking spread over a stone ledge, and our people were hard at work driving cattle in pairs round and round to tread out the grain from the straw. Okay, so let's see. So she said that one day she was coming back to her home and she saw that there is a threshing floor. Now what is a threshing floor? Threshing is the process of separating the wheat from the to separating the seeds of the wheat from the plant. जो हम अभी खेतों में आप लोग जानते हैं कि जो गेहूं के दानों को अलग करते हैं हम, उस पूरे प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं. तो वहाँ पे थ्रेशिंग फ्लोर था और जो लैंडलॉर्ड था वो पूरी तरीके से देख रहा था पूरे प्रोसीडिंग्स को, पूरे काम को. और वो ही इज़ सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग. सैक हम बोरी को बोलते हैं कि वो एक जगह पर बैठा था. स्टोन लेज होता है कि एक बड़ा सा पत्थर था, उसके ऊपर बैठा था. एंड आर पीपल हो गया मतलब जो उसके ट्राइब के लोग थे वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे. ड्राइविंग कैटल्स इन पेयर्स. क्योंकि स्टोरी बहुत पुरानी है तो पहले जो थ्रेशिंग का काम था ये कैटल थ्रू एनिमल्स हम किया करते थे. सो राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम दी स्ट्रॉ. ठीक है. तो स्ट्रॉ वो पार्ट हो गया जो वेस्ट पार्ट हुआ, जो दाने निकालने के बाद जो बच गया उसे स्ट्रॉ बोला गया है. ठीक है. तो उसने नोटिस किया कि ऐसा कुछ है. द एनिमल्स वर मजल्ड सो डैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ. ठीक है. तो जो एनिमल्स थे उनके मुंह बांध दिए गए थे ताकि वो स्ट्रॉ को ना खाएं. आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर एंड वॉचिंग द फन. तो वहाँ पे खड़ी होगी और देखना शुरू कर दिया. ठीक है. इतने में क्या होता है, जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाज़ार. ठीक है. उसने देखा कि उसका एक जो एल्डर है वो आता है उसी की ट्राइब का. एंड द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू double up. I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. ठीक है. तो इस पिक्चर को देखेंगे ध्यान से. इसमें जो ये पर्सन है ये उसी की ट्राइब का था और ये जो इसने पकड़ा है पार्सल, इसको देखेंगे उसने पार्सल को स्ट्रिंग से पकड़ा होता है और अपनी बॉडी से बहुत दूर रखा हुआ होता है. तो जिस मैनर में उसने ये पकड़ा है उसको देख के ये जो बामा है वो काफ़ी ज़्यादा मजाक से उड़ाती है उसका कि कैसे पकड़ा है इसने. I guess there was something like padai or green banana bhaji in the packet because the wrapping paper was stained with oil. ठीक है. तो वो बाहर से ही कुछ आइडिया लगा लेती है कि इसके के अंदर हो सकता है वड़ाज हों और या फिर कुछ बनाना भाजी हो क्योंकि ऑयल जो था वो उसके ऊपर लगा था. ठीक है. He came along holding out the packet by its tongue without touching it. ठीक है. तो उसने स्ट्रिंग से पकड़ा था, उसे टच नहीं किया था. I stood there thinking to myself, if he hold it like that, won't the package come undone and the vadas fell down. ठीक है. तो वहाँ पे सोच रही है, वो हंस रही है कि इसने कैसे पकड़ा और साथ में ये सोच रही है कि ये ढंग से नहीं पकड़ा है इसने. हो सकता है पैकेट अनडन मतलब फट जाए, वड़स बाहर आ जाए, गिर जाए
ओके, तो वो इस तरह से अपने मन में सोच रही है। सो यहाँ पे वड़ास मैं आपको लेट मी शो यू कि वड़ास भी एक तमिलनाडु की ही डिश है। इसे हम कहेंगे वड़ास, दीज आर द वड़ास। ठीक है जी, तमिलनाडु की डिश है वड़ास, वहाँ पे खाए जाते हैं। तो उसे लगा था कि मे बी दीज आर द वड़ास। सो लेट्स गो अहेड। सो इतना हमने कर लिया। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ अ, दिखती है तो वो हंसती है। उसके बाद द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, bowed low and extended the packet towards him, keeping the hand that held the string with his other hand. The landlord opened the parcel and began to eat the butters. तो वो देख रही है कि वो जो एल्डर है वो सीधे गया लैंडलॉर्ड के पास, वो मतलब वो झुका नीचे और पैकेट को उसने आगे की तरफ बढ़ाया। क्यूपिंग द हैंड, अब हम देखेंगे कि क्यूपिंग वर्ड का मतलब क्या है। क्यूपिंग का मतलब होता है कि उसने उसने क्या किया कि वो झुका पहले और अपने इस हैंड को उसने अपनी एल्बो पे लगाया इधर, ठीक है, और ये जो अपना हाथ है उसको आगे बढ़ा के उसको पैकेट पकड़ाया झुक के, ठीक है, इसे हम क्यूपिंग कहते हैं। तो इस तरीके से उसने स्ट्रिंग के साथ उसको पकड़ाया और उसने खाना शुरू कर दिया वड़ास को। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम, माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिंग डिटेल। ओके, तो उसने सब कुछ अपने ब्रदर के साथ शेयर किया। आई टेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन, ठीक है, तो वो आपको पता है उसके लिए वो एक हंसी मजाक का इंसिडेंट था, उसने वैसे सुनाया, वो हंस रही थी। एंड एन एल्डर एट डैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज्ड। ठीक है, ये अन्ना वर्ड बड़े भाई को के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है तमिल में। अम्यूज मतलब उनको उस चीज़ से कोई खुशी नहीं हुई। अन्ना टोल्ड मी डैट मैन वॉजंट बींग फ़नी, ठीक है, अब उसके जो ब्रदर हैं वो उसे बताते हैं कि इसमें कुछ फ़नी थिंग नहीं है। When he carried the package like this, he said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. If they did, they would be polluted, and that's why he had to carry the package by its string. ठीक है, तो उसके ब्रदर ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये कोई फ़नी चीज़ नहीं थी, बिकॉज दे बिलोंग टू अ लोअर कास्ट। ठीक है, क्योंकि वो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, उस इसलिए अपर कास्ट का मानना है कि अगर हम टच करेंगे तो हम पल्यूट हो जाएंगे, ठीक है, हम गंदे हो जाएंगे, इसलिए वो जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो उनसे टच करवा के वो नहीं खाते हैं। ठीक है, तो हाँ, इस पहले से थोड़ा सा टेंसेस पे भी ध्यान देंगे। लेट्स सी द टेंसेस हेयर। पास्ट टेंस का यूज़ किया गया, आपको भी अपने क्वेश्चन आंसर्स में पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तो मैंने आपको बोला था कि ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो ईडीज़ लगाते रहेंगे, मैक्सिमम ईडी से हमारी सेकंड फॉर्म बन जाती है। कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको माइंड में रखनी होती है, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे है एल्डर वेंट, ये सेकंड फॉर्म आ गई गो की बजाय। ठीक है, स्ट्रेट अप लैंड वेंट, बोट डाउन, फिर से ईडी एक्सटेंडेड द पैकेट, कीपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद द लैंडलॉर्ड ओपन्ड। ठीक है जी, यहाँ पे हमने हैड वॉच लगाया है, इसके साथ तो हैज़ हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म लगनी ही है। एट लास्ट आई वेंट होम अगेन, हमने सेकंड फॉर्म लगाई है। आई टोल्ड हिम, टेल की जगह हमने टोल्ड किया है, फॉल की जगह हमने फेल किया, आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी। देन बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज, अगेन अन्ना टोल्ड, सेकेंड फॉर्म लगी है। देन ही सेड, से की जगह सेड किया है। एंड इन द ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि देखो हमने पूरी लाइंस में, हमें ज़्यादा टेंसेस में कंफ्यूज नहीं होना है। आप सीधा सीधा स्टोरीज़ को, जब भी आप चैप्टर के एक्सप्लेन करते हैं, स्टोरीज़ बताते हैं, तो आपको अपने माइंड में सिर्फ सब्जेक्ट, मैक्सिमम हमारे सेंटेंस जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से बन जाते हैं। फाइन, so let's come back to the story. So when I heard this, फिर से डांसेस का ज़रा ध्यान देखेंगे। आप देखेंगे कि मैक्सिमम ईडीज से हमने ज़्यादा इज़ वॉज इनका यूज़ नहीं किया है, सीधे हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। जब भी हमने स्टोरीज़ बतानी होती है, क्योंकि हमने एक के बाद इंसिडेंट्स लगातार बताने हैं, तो इंसिडेंट्स बताने के लिए हम सेकंड फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो व्हेन आई हर्ड दिस आई डिडंट वांट टू लाफ एनी मोर। ठीक है, एक और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा डिड आता है, डिड के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, वी आर ऑलवेज यूजिंग द वर्ड डिड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, क्योंकि डिड इटसेल्फ सेज दैट इज सेंटेंस ऑफ पास्ट, तो आप कभी भी डिड के साथ वांटेड नहीं कर सकते हैं। आई डिडंट वांटेड नहीं आएगा, डिडंट वांट आएगा, डिडंट वांट टू लाफ एनी मोर। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड।
ठीक है, तो जैसे उसे रियलिटी पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा फिर से अगेन देखिए फाइट आया है यहाँ पे। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग इफ वन ऑफ अस held that package in his hands, even though the vadais had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in a paper। ठीक है, तो वो कह रही है कि वो कैसे कुड कैन से बनता है। ठीक है, हाउ कुड दे बिलीव, जब भी हमने सत्ता की फॉर्म में से लेते हैं तो जब भी हमने एबिलिटी के बारे में बताना होता है तो हम पास्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें पास्ट में चल रही है तो कैन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा कुड आएगा। हाउ कुड दे बिलीव, वो कैसे बिलीव कर सकते हैं इट वॉज डिस्गस्टिंग, कि हम अगर किसी पैकेज को छुएंगे, वड़ास को छुएंगे, तो वड़ास को तो उन्होंने कह रही हमने छुआ भी नहीं था, वो पहले बनाना लीफ में कवर थे, उसके बाद वो पेपर में डाले गए थे, तो हम वो तो किसी तरह से कोई डायरेक्ट टच हुआ ही नहीं है। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना, तो उस वक्त वो ऐसा फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा एंग्री से, कुछ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। एंड एंग्री डेट आई वॉन्टेड टू टच दोज रेच्ड वर्ड इज़ माई सेल्फ स्ट्रेट अवे, उसमें इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि जाके वो उन वर्ड्स को टच कर ले। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, आई वंडर्ड। ठीक है, तो वो अपनी फीलिंग्स बता रही है कि हमें ऐसा करना ही क्यों पड़ता है, हम क्यों इन लोगों के लिए चीज़ें लाते हैं फिर उन्हें खाने के लिए देते हैं। वाई शुड वी हैव टू फैच, आई वंडर्ड, मैं ये सोच रही हूँ, सच एन इंपॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर of ours goes meekly to the shop to fetch snacks and hand them over, reverently bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. And the thought of it infuriated me। ध्यान से देखेंगे ज़रा लाइन को, वो कह रही है कि अब वो उस एल्डर की बात करिए कि वो इतने इंपॉर्टेंट हमारे एल्डर हैं, हमारे बड़े हैं हमारे ट्राइब के, और वो मीकली मतलब बहुत ही झुकते हुए कमज़ोर, मीक वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर द वीक पीपल। तो वो शॉप पे जाते हैं, वहाँ स्नैक्स लेते हैं और उन्हें फिर हैंड ओवर करते हैं। तो लैंडलॉर्ड्स वेरी रेवरेंटली, रेवरेंटली मतलब होता है बहुत ही इज्जत, जब हम किसी को देते हैं तब हम रिस्पेक्टेड का एक सिनोमिनम रख लीजिए। ठीक है, रेवरेंटली जाएंगे, बोइंग करेंगे, नीचे झुकेंगे, एंड श्रिंकिंग, श्रिंकिंग भी यही बताने के रिस्पेक्ट देने के लिए, या डरे हुए जाएंगे वहाँ पे। जस्ट सिट देयर एंड स्टफ दैम इनटू हिज माउथ, कि हमें जाना पड़ता है, फिर उनको ला के देनी पड़ती चीज़ें। ये जो थॉट है कि मुझे इन्फीरिएटेड कर रहे थे, मतलब उकसा रहे थे या मुझे गुस्सा दिला रहे थे। हाउ इट वॉज दैट दिस फेलोज थॉट सो मच ऑफ दैम सेल्व्स, दीज फेलोज यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स के लिए यूज़ किया गया है, बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर, का मतलब है कि उन्होंने अगर थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, वो थोड़े अमीर हो गए हैं, तो डिड डैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, इसका मतलब ये है कि वो सारी ह्यूमन फीलिंग्स को ख़त्म कर देंगे। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल आया है यहाँ पे। लेटर कह रही है कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स, आर पीपल शुड नेवर रन दिस पेटी इरेंट्स फॉर दिस फेलोज। ठीक है, कि हमें हमारे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए कि फॉर्म में, नेवर रन दिस पैटी इरेंट्स होता है छोटे मोटे काम, ठीक, एक्टिविटीज़ जो वो करते, छोटे मोटे काम उनके लिए करते थे, कि हमें नहीं करने चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड, वो कहते ठीक है हमें उनके घर फील्ड्स में काम करना चाहिए, अपने वेजेस लेने चाहिए और बाकी छोड़ देना चाहिए सारी चीज़ें वहीं पे। ओके, सो लेट्स मूव। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज़। अब अपने ब्रदर के बारे में बता रही है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था लेकिन हॉलीडेज़ के लिए घर पे आया था। एंड ही वुड ऑफन गो टू द बुक लाइब्रेरी इन आर नेबरिंग विलेज। ठीक है, वो जाता रहता था इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, तो एक और इंसिडेंट शेयर कर रही है कि वो घर आ रहे थे, वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक्स। सो इरीगेशन टैंक्स, क्योंकि पहले की बात है तो पहले लोग क्या करते थे कि इरीगेशन टैंक्स बनाते थे। क्या होते हैं इरीगेशन टैंक्स? इस तरह के आपको इरीगेशन टैंक्स दिखेंगे, इन्हें हम इरीगेशन टैंक्स कहते थे। ठीक है, जहाँ पे रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता था इरीगेशन के लिए। ओके, सो यस, तो यहाँ पे थे हम कि वो जो ब्रदर था वो वापस आ रहा था इरीगेशन टैंक के पास चलता हुआ। देन वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, एक लैंडलॉर्ड आता है, एंड ही थॉट माई अनाज लुक्ड अनफेमिलियर। ठीक है, तो कोई आदमी था वहाँ पे जिसने उसके ब्रदर को पहचाना नहीं, उसे अनफेमिलियर लगा, तो उसने पूछा हु आर यू अप्पा। ठीक है, तो अप्पा ही भी वहाँ की लैंग्वेज है। ठीक है, तो किसी लड़के को के लिए अप्पा वर्ड यूज़ किया जाता था वहाँ पे। उसने पूछा व्हाट्स योर नेम, अन्ना टोल्ड हिम। ठीक है, उसने नाम पूछा, तो उसका जो ब्रदर था उसने एकदम से बताया नहीं, तो जो मामा है वो उसे कहती है कि अपना नाम बताओ। इमिडिएटली द अदर मैन आस्क्ड थम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव। ठीक है, तो उसने उसे पूछ लिया कि तुम, थम्बी भी उन्हीं का ये एक वर्ड है। तो उसने पूछा कि तुम कौन से स्ट्रीट में रहते हो, क्योंकि पहले जो ये सिस्टम थे वहाँ पे क्या होता था कि जो ये
विलेजेस थे वो डिवाइड किए होते थे, अपर कास्ट और लोअर। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको सेपरेटली रखा जाता था। गाँव के जो बाहर एक सेपरेट एरिया होता था, मतलब स्ट्रीट्स होती थी अलग अलग, ये इनका एरिया है, ये इनका एरिया है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन से स्ट्रीट में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आर कास्ट टू। ठीक है, तो मतलब उनकी पहचान ही उनकी स्ट्रीट से बन गई थी। तो मामा ये कि यहाँ पे बता रही थी कि जो हमारी स्ट्रीट है वहीं से वो पहचान लेते थे कि हम कौन सी कास्ट के हैं। अन्ना टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स एंड ही एडिड, because we are born into this community we are never give any honor or dignity or respect and we are stripped of all that। ठीक है, तो ये ना उसे बता रहे हैं चीज़ों को डिटेल में कि क्योंकि वो इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं तो जो उनकी ऑनर डिग्निटी और जो रिस्पेक्ट है वो कभी नहीं मिलेगी और स्ट्रिप्ड ऑफ में से उनसे ले ली जाएगी। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन एक रास्ता है कि अगर हम स्टडी करते हैं, लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, वी कैन थ्रो अवे ऑल दिस इनडिग्निटीज़। ठीक है, इनडिग्निटीज़ मतलब होता है जितनी भी रिस्पेक्ट्स हैं उन सबको वो दूर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं ओनली बाय द स्टडी। सो स्टडी विद केयर। वो भी ये कहते हैं कि तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। लर्न ऑल यू कैन एंड इफ़ यू ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, मतलब तुम अगर अपनी पढ़ाई में आगे रहती हो, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू। ठीक है, तो लोग अपने आप आगे आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे और अपने आप को तुम्हारे साथ अटैच करेंगे। सो उसने ये बोला उसे कि वर्क हार्ड एंड लर्न। और ये जो वर्ड थे अन्ना के, द वर्ड्स दैट अन्ना स्पोक टू मी दैट डे made a very deep impression on me and I studied hard with all my breath and being in a frenzy almost। ठीक है, frenzy almost का मतलब होता है कि जो उसके words थे उसने उसे इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि वो एक एक्साइटमेंट से पढ़ने लगी। ठीक है, जब हमें एक एक्साइटमेंट होती है ना कि हमने पढ़ना है, लेकिन हमारी जो एक्साइटमेंट होती है वो एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो इसकी एक्साइटमेंट थी वो नहीं ख़त्म हुई कभी भी और इसने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स को अचीव किया है। ओके, दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ दिस पार्ट। एज अन्ना हैड अर्ज्ड, ठीक है, अर्ज मतलब कि अन्ना ने जो मुझे रिक्वेस्ट की मुझे, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, उन वर्ड्स का बहुत उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा एंड बिकॉज ऑफ डैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स। उसने देखा भी कि अगर उसने अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया तो काफ़ी लाइफ में चेंजेस आई, उसे रिस्पेक्ट मिलने लगी और काफ़ी लोग जो हैं वो उसके फ्रेंड्स भी बने। ओके, सो इन दिस वे वी कवर आर दिस चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसका ये पार्ट 2 है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स।